ناظرین السلام علیکم، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ نظام آباد کی زراعت پورے ملک کے لیے قابل تقلید، بلدیاتی انتخابات میں کانگریس کا پرچم لہرایا جائے گا۔ مودی حکومت نظام آباد کو اسمارٹ سٹی بنانے میں ناکام، کشن ریڈی کشن راؤ بن چکے ہیں۔ نظام آباد میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ حیدرآباد کا عالمی شہروں سے مقابلہ، 2 سال میں 20,000 کروڑ روپے مختص۔ پراپرٹی شو کی تقریب سے نائب وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ انفراسٹرکچر کے ساتھ شہریوں کے معیار زندگی بھی اہم۔ بلدی انتخابات کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی اضلاع میں طوفانی مہم۔ فرقہ پرست عناصر ملک کے لیے سنگین خطرہ، پارٹی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل، عوام میں زبردست جوش و خروش۔ کانگریس اور بی جے پی نے تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا، بلدیاتی انتخابات میں کانگریس کو سبق سکھائیں۔ کے سی آر کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کی جدوجہد کا آغاز، وملاواڑہ میں کے ٹی آر کی انتخابی مہم۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، ایم ایس این ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ نظام آباد کے کسانوں کی جدوجہد پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے۔ نظام آباد کے بردی پور میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد منعقدہ عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا،
निजामाबाद की ज़राअत न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क के लिए काबिल तकलीद है। उन्होंने यकीन दिलाया कि निजामाबाद ज़िले में जारी मंसूबों की तकमील के लिए इजाफी फंड्स फराहम करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा, पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत के मुताबिक ज़िले में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आइंदा बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, अगर कांग्रेस के कॉरपोरेटर मुंतखब होते हैं तो शहर की तरक्की यकीनी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वह सबके वज़ीर आला हैं, उनका कोई ज़ात या मजहब नहीं है। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की है कि बलदियाती इंतखाबात में फैसला कुन और मुनफरिद फैसला दें। रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस की 10 साला दौरे हुकूमत में निजामाबाद एक गंदगी का ढेर बन गया। 2 मरतबा बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद को मुंतखब करने के बावजूद मरकजी हुकूमत ने निजामाबाद के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आला ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म मोदी 3 मरतबा इख्तिदार में आने के बावजूद निजामाबाद को स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनाया गया। रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदनवानी के इल्जामात का हवाला देते हुए कहा कि मामला सीबीआई के हवाले किया गया, मगर बीजेपी इस पर खामोश है। उन्होंने तंज़ीह अंदाज में कहा कि बीजेपी के मरकजी वजीर किशन रेड्डी केसीआर और केटीआर को बचा रहे हैं और वो किशन राव बन गए हैं। మీ కిషన్ రెడ్డి కాదు, ఇవాళ మీ కిషన్ రెడ్డి కల్వకుంట్ల కిషన్ రావుగా మారిండు. కేసీఆర్ కో కొడుకున్నాడు, కేసీఆర్ కో పుత్రుడు ఉన్నాడు, దొంగ పుత్రుడు కేటీఆర్. ఇవాళ కేసీఆర్ కి ఇంకో దత్తత పుత్రుడు ఉన్నాడు, ఆయన పేరు కల్వకుంట్ల కిషన్ రావు. దొంగ పుత్రుడు దత్తపుత్రుడు కలిసి ఈ రోజు కేసీఆర్ అవినీతిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మొట్టమొదట రామచంద్రరావు గారు కిషన్ రెడ్డి గారిని జనజీవన స్రవంతిలోకి తీసుకురా. ఈ రోజు కేసీఆర్ కు కాదు ఊడిగం చేయాల్సింది, తెలంగాణ ప్రజలకు సేవలు అందించాలి. నిజంగానే మీకు పరపతి ఉంటే మున్సిపాలిటీలలో ఓట్లు అడగాలంటే నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ ని స్మార్ట్ సిటీలో ఈ రోజు మీరు ప్రకటించండి. హైదరాబాద్ నగరంలో మూసీ నిర్మాణం, అహ్మదాబాద్ లో మీరు నర్మదా నది రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకుంటారు, ఢిల్లీలో యమునా నది కట్టుకుంటారు, ఉత్తరప్రదేశ్ లో గంగా నది కట్టుకుంటారు. మా హైదరాబాద్ కు మాత్రం మూసీ నది ప్రక్షాళన జరగొద్దా? మోడీ నిధులు ఇయ్యడా? మోడీకి ఓట్లు ఇయ్యలేదా? బీజేపీకి 8 సీట్లు ఇవ్వలేదా? తెలంగాణ నుంచి 8 మంది ఎంపీలను ఇస్తే 2 మంత్రులను చేసినామంటున్నారు, కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా తెలంగాణకి ఇవ్వలేదు. ఇది దుర్మార్గం కాదా అని నేను బీజేపీ నాయకులను నేను అడుగుతున్నా. हैदराबाद का मुकाबला मुल्क के किसी दूसरे शहरों से नहीं बल्कि आलमी शहरों के साथ है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान शहर की तरक्की के लिए 20,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने केरडाई प्रॉपर्टी एग्जीबिशन शो का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के तहत तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो वाटर सीवरेज बोर्ड के लिए 12,500 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 4,365 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। सरमायाकारी के हुसूल रोजगार, मेयार जिंदगी और अहलियत रखने वाले अफराद के लिहाज से हैदराबाद मुल्क के दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले आगे है। उन्होंने शहर के अतराफ वाक़े 27 नवाही बल्दियात के जीएचएमसी में इंजमाम का हवाला देते हुए कहा, इसके जरिए बलदी खिदमात एकसानियत पैदा करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। 7,000 करोड़ रुपए के सरमाए से 45 अहम फ्लाईओवर्स और अंडरपास, सड़क तोसी के 10 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। केबीआर पार्क के अतराफ 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हैदराबाद के कई इलाकों में सड़कों की तोसी के काम जारी हैं। इस तरह शामिल हैं और दूसरे काम भी अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही तरक्की मुमकिन नहीं, बल्कि इसके साथ साथ शहरियों की मेयार जिंदगी को बेहतर बनाना भी जरूरी है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद बलदी कॉरपोरेशन के कांग्रेस उम्मीदवारों से मुलाकात करते हुए कहा कि शहर में कांग्रेस को कामयाब बनाना उम्मीदवारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने कहा कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में निफ्स उम्मीदवार खवातीन हैं और इस बार इंतखाबात में खवातीन का किरदार फैसला कुन होगा। एक वोट इंतहाई अहम है। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस के हक में साजगार माहौल है और बी फॉर्म मिलने पर जीत का पूरा एहतमाद है। उन्होंने उम्मीदवारों को हिदायत दी कि टिकट मिलने के बाद किसी भी किस्म की गफलत न बरतें और सबको साथ लेकर चलें।
सरकारी फलाह व तरक्याती प्रोग्रामों को आवाम तक पहुंचाने से कामयाबी मुमकिन है। रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि पार्टी की जानिब से हर तरह का ताउन फराहम किया जाएगा। निजामाबाद के लिए जरूरी फंड्स भी फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने फर्ज की अदायगी के दौरान जान गंवाने वाले कांस्टेबल्स के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की है। वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद में एक्साइज कांस्टेबल गाजुला सुमैया के खानदान और पुलिस कांस्टेबल प्रमोद कुमार के खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए के चेक हवाले किए। वाज़ेह है कि एक्साइज कांस्टेबल सोमैया 23 जनवरी को निजामाबाद में गैर कानूनी तौर पर गांजे की स्मगलिंग के गुनों को पकड़ने के दौरान फर्ज को अंजाम देते हुए शदीद जख्मी हुए थे। मुलजमीन ने उन्हें गाड़ी से टक्कर मारी, जिसके बाद वह हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज रहे, बाद में फौत हो गए। इसी तरह गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ड्यूटी के दौरान चाकू के वार से शदीद जख्मी होने वाले पुलिस कांस्टेबल प्रमोद कुमार भी जाँबर न हो सके थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में नफरत अंगेज तकारीर पर काबू पाने के लिए आइंदा असम्बली इजलास में एक कानून लाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में अमन अमान और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए सख्त कवानीन का निफाज जरूरी है। जुमेरात को हैदराबाद में जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की आज़ादी की जीदोजहद में अहम किरदार अदा किया और जमीयत उलमा हिंद की खिदमात, जिनमें अक्सरियती और अक़लियती तबक़ात की मुश्तरका शिरकत रही, काबिल सिताइश है। वज़ीर आला ने मल्काजगिरी लोकसभा के इंतखाबात और रियासती असम्बली के इंतखाबात में हिमायत पर जमीयत का शुक्रिया अदा करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने का चैलेंज किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि लोकसभा के इंतखाबात में BRS की वजह से बीजेपी के वोट फीसद में इजाफा हुआ। रेवंत रेड्डी ने याद दिलाया कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उन्हें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की हिमायत हासिल हुई थी और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी के साथ मिलकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जिद्दोजहद की। सबको साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हेट स्पीच के लिए जो कानून बनाना है, आने वाले बजट सेशन में कानून लागू करेंगे। तेलंगाना रियासत में पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन रहे। मैं ऑफिसरों को सबको बोल दिए, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट तक जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन ने बचाया, परसों मोदी के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश किए, हेट क्राइम हेट स्पीच के कानून बना दो, आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है। ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना। ये हेट क्राइम भी पूरा करप्ट कर दे के जो भी ऐसा कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने का नहीं है, हम हैं। परसों चुनाव में आप 8 सीट कैसे मिले सबको पता है। किसी ने ऑर्गन डोनेशन किए, खुद के पार्टी को खत्म कर दे के और किसी को वोट बदलाव किए। 35-36% वोट 15% कैसा हो गए? आप लोग सोचो, मैं बोलेगा नहीं, आप स्कॉलर से 9.5 लाख मेंबर्स है, उसमें 50-40 हज़ार स्कॉलर्स है जमीयत उलमा में। इस देश में 1 करोड़ जवान है, इसमें जमीयत उलमा 1 करोड़ लोग इसमें मेंबर्स है। सब लोग पढ़े लिखे सो ताकत वाले हैं। 1 करोड़ में समझदार वाले डॉक्टर लोग, बड़े बड़े स्कॉलर्स है इसमें। तेलंगाना के रियासत में 9.5 लाख आप लोग मेंबर्स है। ये एक दिन बस है आप लोगों को एक जगह में 10 लाख जमा होने के लिए। मुझे पता है आप लोगों का ताकत। हुस्नाबाद में मुनक्किदा मीडिया इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, तरक्की को देखकर वोट दें। हुस्नाबाद को दीगर अजला के मुकाबले में आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में अवामी हुकूमत मुतादिद फलाही व तरक्याती स्कीमें नाफिज कर रही हैं। इनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बारीक चावल, नए राशन कार्ड, इंदिरम्मा मकानात, खवातीन के लिए RTC में मुफ्त सफ़र, खवातीन ग्रुपों को बिलासूदी कर्जे, रैतु भरोसा कर्ज माफ़ी और धान पर बोनस शामिल हैं। रियासती वजीर ने कहा, कांग्रेस को रियासत भर में अवाम की हिमायत हासिल है। तमाम बल्दियात में कांग्रेस का परचम लहराना चाहिए।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। वेमुलावाड़ा में बलदियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगा कि कांग्रेस झूठे वादों और नाक़िस हुक्मरानी के जरिए तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रही है। बीजेपी मजहब और जात के नाम पर वोट मांगती है। केटीआर ने कहा, कांग्रेस की 6 जमानतें और दीगर वादे जमीनी सतह पर नाफिज नहीं हुए। उन्होंने विमलावाड़ा के एमएलए आदि श्रीनिवास पर तनकीद करते हुए कहा, इंतखाबात के वक्त बॉन्ड पेपर वादे लिख कर देने के बावजूद आज तक उन वादों का कोई पता नहीं। उन्होंने अवाम से अपील की कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बलदियाती इंतखाबात में उसके खिलाफ वोट दें। केटीआर ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, बीजेपी ने तेलंगाना को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, हर इंतखाब में झूठे नारों के जरिए वोट हासिल करती रही। केटीआर ने अवाम से अपील की कि बलदियाती इंतखाबात में बीआरएस को वोट देकर केसीआर को दोबारा वजीर आला बनाने की जिद्दोजहद का आगाज करें। तेलंगाना जागृति की लीडर कल्वाकुंतला कविता ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस ने बलदियाती इंतखाबात में माधव रेड्डी को टिकट देकर 20 सीट तहफुजात की मुखालिफत पर अपनी मोहर लगाती है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, माधव रेड्डी ने 20 सीट तहफुजात के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की थी, उसके बावजूद उन्हें टिकट दिया जाना बीआरएस के बीसी मुखालिफ रवैये को जाहिर करता है। कविता ने कहा कि बीसी तबके के लिए तालीम, रोजगार और सियासत में 42% तहफुजात के लिए जागृति और दीगर तंजीमों ने तवील जिद्दोजहद की, जिसके नतीजे में बिल आया, मगर उसी के खिलाफ अर्जी दायर करने वाले शख्स को बीआरएस ने उम्मीदवार बनाया। कविता ने सवाल किया कि क्या ये अर्जी बीआरएस की पुष्पनाही से दाखिल की गई है। उन्होंने कांग्रेस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस से मुंतखब होने वाले एमएलए को कांग्रेस बलदियाती इंतखाबात का इंचार्ज बनाना अवामी मैंडेट की तौहीन है। कविता ने मुतालबा किया, अगर कांग्रेस को आईन पर यकीन है तो ऐसे फैसलों पर फौरी कार्रवाई करें। मुबैना इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों तक के लिए समाअत को मुलतवी किया है। जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज और जस्टिस संजय की बेंच ने समाअत को मुलतवी किया। स्पीकर की तरफ से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ को लेकर बीजेपी के रुकन असम्बली ए महेश्वर रेड्डी की तरफ से दरखास्त दाखिल की गई थी। बीआरएस पार्टी भी इस सिलसिले में आला अदालत से रुजू हो चुकी है। तेलंगाना के बलदी इंतखाबात के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। इस बार तेलंगाना के बलदी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने जुमे को बोधन टाउन में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह फलक शिगाफ नारों के साथ इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना के दूसरे अजला में भी मजलिस उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। बोधन में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, 24 उम्मीदवार मैदान में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पहले से ज्यादा उम्मीदवार कामयाब होंगे। सदर मजलिस ने निजाम शुगर फैक्ट्री से मुताल्लिक कहा कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों हुकूमतों ने इस फैक्ट्री को लेकर जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बोधन में कई मसाइल हैं, निजाम शुगर फैक्ट्री के वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए भी कोशिश की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के लीडर साबिक रुकन असम्बली वारिस पठान ने महबूबनगर बलदी कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने शाह साहब गुट्टा व दीगर डिवीजन्स में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत को तस्लीम करते हुए हालिया बलदी इंतखाबात में मजलिस को नुमायां कामयाबी दिलाई। अब तेलंगाना के अवाम इस क़ियादत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने कौमी सतह पर मुसलमानों व पिछड़े तबकात के मसाइल और मजलिस की मुसलसल जिद्दोजहद से वाकिफ कराया। वारिस पठान ने महबूबनगर के अवाम से कहा कि वो अपने एक वोट का मजलिस के हक़ में इस्तेमाल करें। मुत्तहदा ज़िले के मजलिस के इंचार्ज व कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद अल जाबरी, सदर ज़िला मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट, इलेक्शन इंचार्ज मोहसिन बलाला, सदर टाउन मजलिस सैयद सादतुल्लाह हुसैनी और दूसरे भी मौजूद थे। 11 फरवरी को होने वाले तेलंगाना बलदी इंतखाबात के तनाजुर में गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं। कशीदगी का माहौल भी देखा जा रहा है। मेरचल जिले में कांग्रेस और बीआरएस ग्रुप के दरमियान हाथ हाथापाई तक पहुंच गई।
आलेर असेंबली हल्के के तहत लालगुड़ी, मलकापेटा में मेडचल के रुकन असेंबली मल्ला रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर विजरेश यादव के दरमियान पहले बहस व तकरार हुई। धक्कमपेल में बीआरएस के लीडर नीचे गिर गए। बताया जाता है कि पार्टी के गीत को लेकर बहस व तकरार हुई। दोनों ग्रुप आपस में मुतसादिम हो गए। पुलिस को मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज़मीन हज के लिए तेलंगाना हज कमेटी की ज़ेर-ए-एहतमाम तीसरा तरबियती इज्तिमा इतवार 8 फरवरी को सुबह 10:04 बजे मीनार गार्डन, सालार जंग म्यूजियम रोड, नया पुल में मुनक्किद होगा। सदरनशीन हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा सदारत करेंगे। दावत इस्लामी तंजीम के ताउन से इसका अहतमाम किया गया है। उलमा इकराम सफ़र हज, मनासिक हज व दीगर हज उमूर पर खिताब करेंगे। कन्वीनर मौलाना सैयद शाह मकसूद कादरी अत्तारी ने आज़मीन से वक्त मुकर्ररा पर शिरकत की अपील की है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार किया और मरहूम की अवामी व मिली खिदमात को खराज पेश किया। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुईनुद्दीन फ़हीम व दीगर जिम्मेदारान की जानिब से फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि मरहूम ने अपनी सादगी और अवामी ज़िंदगी में इक़दार के ज़रिए अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई। कानून साज असम्बली में कौम मिल्लत की बेबाकी से तर्जुमानी के अलावा दीनी सरगर्मियों में भी उनका अहम किरदार रहा। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन को सब्र जमील की तलक़ीन की गई। कुल हिंद सनअती नुमाइश में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि हैदराबाद की नुमाइश का शुमार मुल्क की सबसे बड़ी और मशहूर और मारूफ नुमाइश में होता है। इसमें मुल्क की तमाम रियासतों में तैयार की गई अशिया को नुमाइश के लिए पेश किया जाता है, जिसे लोग बड़े जोश व खरोश से खरीदते हैं। मुल्क के सनतकारों और ताजरीन को अपनी तैयार की गई अशिया की मार्केटिंग के लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म समझा जाता है। अब जबकि नुमाइश इख्तिताम पजीर होने बहुत दिन कम रह गए हैं, नुमाइश देखने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जनवरी और फरवरी के 2 महीने नुमाइश की सड़क एक मसरूफ तरीन सड़क बन जाती है। नुमाइश की वजह से सड़क के बाजू की दुकानों का भी अच्छा खासा कारोबार चलता है। मेडचल दुंडीगल मंडल के पोचमपल्ली में वक्फ अराजी पर मुबैना कब्जे का इंकशाफ हुआ है। मुकामी अवाम और मुतवल्लिन ने इस सिलसिले में वक्फ इंतजामिया से कार्रवाई की अपील की है। बताया जाता है कि अदालत में भी ये केस ज़ेर समाअत था और अदालत ने वक्फ बोर्ड को अराजी तहवील में लेने की हिदायत दी थी। मुकामी अवाम ने बताया कि बोर्ड की जानिब से पर वक्त कार्रवाई नहीं की गई। लैंड ग्रैबर्स फिर से सरगर्म हो गए हैं। मुतवल्ली और मुकामी अवाम ने CEO से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की और वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के वफ़द ने कमिश्नर पुलिस से मुलाकात करते हुए शहर में मुबैना तौर पर मुक़ीम गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफ़द ने इस सिलसिले में एक याददाश्त भी कमिश्नर पुलिस के हवाले की। इसमें बताया गया है कि बालापुर के इलाके में 24 रोहिंग्याई कॉलोनीज मौजूद हैं। 6,993 रोहिंग्याई मुसलमान इन इलाकों में मुक़ीम हैं। गणेश उत्सव समिति के अरकान ने कमिश्नर पुलिस से दरख्वास्त की है कि फौरी इन गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। डीसीपी राजेंद्र नगर पुलिस एस श्रीनिवास ने मिलारदे फली पुलिस स्टेशन में रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की। इस मौके पर डीसीपी श्रीनिवास ने रोडी शीटर्स को इंतबाह दिया कि वो गैर कानूनी हरकतों से बाज आ जाएं। इसके अलावा उन्होंने उनके बर्ताव में बेहतरी लाने और गैर जरूरी रात के औकात में घूमने, डरा धमका कर अवाम को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ वार्निंग दी। बसूरत दीगर पुलिस उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने रोडी शीटर्स को उनके बर्ताव में बेहतरी लाने का मशवरा दिया और पुरअमन शहरी बनने के लिए कहा। रोडी शीटर्स ने यकीन दिलाया कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस मौके पर उनका कहना था कि बाज़ रोडी शीटर्स पर कई मुकदमे आयद किए गए हैं। वाज़ेह के काउंसलिंग में 32 रोडी शीटर्स हाजिर हुए। शादनगर पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरके की वारदातों में मुलविस सारिक को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक फारूक नगर मंडल का साकिन शिवलिंगम 2 व्हीलर का सरखा किया करता था। बताया जाता है कि मकानात और दुकानात के सामने पार्क की गई मुखफ़्फ़ल 2 व्हीलर्स को निशाना बनाया जाता। पुलिस ने रघवेंद्र यादव नामी शख्स की बाइक के सरके की तहक़ीक़ात पर शिवलिंगों को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 5 2 व्हीलर्स को जब्त किया है।
आवारा कुत्तों के हमले में एक और कमसीन बच्चा जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के आर.के. नगर में 5 साला शिवा सड़क के पास खेल रहा था। आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। शिवा के हाथ पर जख्म पाए गए। जख्मी बच्चे को मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। निजामाबाद की ज़राअत पूरे मुल्क के लिए काबिल तकलीद। बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस का परचम लहराया जाएगा। मोदी हुकूमत निजामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में नाकाम। किशन रेड्डी किशन राव बन चुके हैं। निजामाबाद में वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद का आलमी शहरों से मुकाबला, 2 साल में 20,000 करोड़ रुपए मख्तस। प्रॉपर्टी शो की तकरीब से नायब वजीर आला का खिताब। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शहरियों के मयार जिंदगी भी अहम। बलद इंतखाबात के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की अजला में तूफानी मुहिम। फिरका परस अनासिर मुल्क के लिए संगीन खतरा। पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील। अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश। कांग्रेस और बीजेपी ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाएं। केसीआर को दोबारा वजीर आला बनाने की जिद्दोजहद का आगाज। विमलावाड़ा में केटीआर की इंतखाबी मुहिम।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।